भी प्रेसिडेंट था और आज भी वो प्रचलित है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये प्रेस्टीज इश्यू क्यों बन गया। 267 में एक हमको कहने के लिए तो मौका मिलता है और आपने ये भी कहा कि उसको एडमिट करने के लिए कारण होना चाहिए, तो हमने कारण तो बताया। मैंने तो आपसे कल ही विनती की, आप जरा गुस्से में थे शायद, आपको आई एम अ मैरिड मैन फॉर मोर देन 45 years। मैं कभी गुस्सा नहीं करता सर, ट्रस्ट मी। नहीं साहब, कभी गुस्सा नहीं करता मैंने चंद लोग एंड मिस्टर Chidambaram, a very distinguished senior advocate, will know, as senior advocates, we have no right to show our anger, at least to the authority. You are an authority, sir. गुस्सा नहीं करता किसको? नहीं, इसको मॉडिफाई कर दो सर थोड़ा। नहीं, गुस्सा नहीं करता। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। हाँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। नहीं, आप गुस्सा नहीं करते, दिखाते नहीं, लेकिन बराबर अंदर से करते हो। लेकिन तो सर, she is not a member of the house. We can't discuss one who is not a member of the house. Sir, in this relationship, otherwise we can discuss. Go ahead. So, sir, let us have your input, sir. देखिए, मैं नोटिस यूं ही नहीं दिया, मैंने 8 पॉइंट इसमें लिखकर डिटेल दिया क्यों 267 में ये विषय एडमिट करना, ये पूरा है। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं कि कोई कारण नहीं 267 में लेने के लिए, तो ये प्रेस्टीज इश्यू बन गया। अब हम इसको रोज उठा रहे, उधर से रोज सजेशन हो रहा। नहीं, मेरा सजेशन यही है कि आप 1 बजे इसके लिए अपने चेंबर में बुला रहे हैं, तब तक आप हाउस एडजर्न करिए और हम बैठकर 1 बजे तो फिर यहाँ पर आएंगे, फिर वो समस्या को सुलझाकर हम यहाँ पर बैठेंगे। ये मेरा विनती है आपसे। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर्स, सर ये बड़ा छोटी सी, आप छोटा सजेशन भी नहीं मानते। प्राइम मिनिस्टर यहाँ आने दो बोले तो वो भी नहीं मानते, और प्राइम मिनिस्टर को आप इतना डिफेंड कर रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अनपार्लियामेंट्री है। प्लीज सर, अरे ये हर बात को प्लीज सर, I got a point. अरे भाई ये डेमोक्रेसी है, प्लीज ये क्या बाउंडेड लेबर है आप? No, please. इस चीज को करने के लिए nothing will go on record. Please, honorable members. सर, आप बुला रहे। Honorable members, 1 second, please take your seat. Honorable member, let me respond to what the LOP has said. No. Honorable members, we must always be alive. Would you please take your seat? Then take. Nothing will go on record. Take your seat. Sorry. Don't disrupt the house. Honorable members, leader of the opposition has put out 3 things for consideration. I'll take up the last one. That concerns the Honorable Prime Minister. We must always be alive to a situation that we are a nation of more than 1.3 billion people. We are a democracy, most functional, vibrant, globally recognized. India is the only democratic nation in the world that has constitutional democracy at the village level, at Panchayat Samiti level, at Jila Parishad level, apart from state and there. If our Prime Minister is not required to be defended by me, he has come to be recognized on global platforms, Senate and Congress in the US. Imagine the kind of response. Every Indian should be proud
We must be proud of it. No, you cannot have an approach. Why are you shirking from the hard reality? India is rising as never before. The rise is unstoppable. It is on account of all of us. Everyone has contributed to it. Such a global recognition. I am not required to defend anyone. The Prime Minister, honorable members, after 3 decades of coalition governance under the leadership of the Prime Minister, you had 2014, you had 2019 electoral results. I am not required to defend anyone. If I am required to defend anyone, I am not required to defend right, I am not required to defend left, I am required to defend Constitution. I am required to defend your rights. Therefore, such an observation coming from leader of opposition is not very wholesome. We cannot have it, you see. We must be proud of our government, proud of our citizens, proud of our developments. Where are we? Honorable members, where are we heading? Political stance, you are entitled. I am not a stakeholder in politics. Once again, I am not a stakeholder in politics. I am not concerned with politics of parties. I am concerned with governance. I am concerned with growth of the country. No. Honorable members, matters raised with permission, Dr. Sumer Singh Solanki. Dr. Sumer Singh Solanki. धन्यवाद। Nothing has been on माननीय record. सभापति महोदय, नर्मदे हर में आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान देश के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, देश भर में बोरवेल और ट्यूबवेल के खुले गड्ढों में गिरने से न जाने कितनी ही मासूम जिंदगियां की किलकारियां हमेशा के लिए बंद हो रही है। यह सरकार एवं समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के खेरखेड़ी पठार गांव में खुले बोरवेल में गिरने से 7 वर्षीय बालक लोकेश को नहीं बचाया जा सका। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के दमोह, विदिशा, उमरिया जिले में भी मासूम जानों को नहीं बचाया जा सका। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में खुले बोरवेल में गिरे 5 साल के बच्चे को तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं बचाया जा सका। तमिलनाडु के त्रिची शहर के नाटुकाटुपत्ती गांव में बोरवेल में गिरे 2 वर्षीय बालक सुजीत को भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की हर मुमकिन कोशिशों के बाद भी नहीं बचाया जा सका। पंजाब के संगरूर जिले में 150 फुट गहरे बोरवेल में गिरे 3 साल के फतेहवीर सिंह को भी नहीं बचाया जा सका। माननीय सभापति महोदय, विगत वर्ष उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में वाराणसी के पिंडारा में भी ऐसी घटनाएं घटित हुई, जिसमें 6 साल की मासूम बच्ची 13 वर्षीय अनिकेत यादव की भी मौत हो गई। हरियाणा के हल्देड़ी गांव में 2006 तो ये राज्यसभा की कार्यवाही इस वक्त आप देख रहे हैं। राज्यसभा में अभी हंगामा इस वक्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने यहाँ पर कहा कि 267 नियम के तहत विपक्ष अगर बहस की या चर्चा की मांग चाह रहा है मणिपुर के मुद्दे पर, तो उसे प्रेस्टीज इशू क्यों बना लिया गया, ये समझ से परे है। और यहाँ पर उन्होंने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से भी कहा कि आप प्रधानमंत्री को डिफेंड क्यों करते हैं। और उसके बाद जगदीप धनखड़ ने भी जवाब दिया इसका, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो पद है उसको किसी के डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने विकास के काम किए, उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।